Hello students, today we are going to start the third unit of object-oriented programming languages. In this unit, there are lots of important concepts we will learn like inheritance, polymorphism, and types of polymorphism, types of inheritance, right? So this is the basic building block of the object-oriented programming. We should understand all these concepts in a very clear manner, right? So let's start. सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कोई क्लास है, so suppose we have a class and we want to add some other property in the existing class, right? So हमें क्या करना पड़ेगा? First of all, we have to inherit that class and we can add the new feature of the existing one, right? So this the concept, this type of concept when we implement using the programming language, so this is called the inheritance, right? Without inheritance it is not possible for us to add the property or adding the new feature in the existing one, right? Suppose we have a function in the base class, right, like sum, and in the base class sum function we have a two argument, right, and we are adding these the two variables in the base class function. But now we want to add the three variables. So what we have to do? We have to first inherit the base class in the derived class, and then we can add some new variable and we can add three variables. And whatever the logic you want to implement with the derived classes, you can do this. But the thing is that you have to inherit the base class first, and then you can add the features of the existing one, right? So now we have some definitions, some facts about the inheritance. The mechanism of deriving a new class. Okay, so आपको नई class derive ही करना पड़ेगा. You have to the mechanism of deriving a new class from an old one. It's called the inheritance or derivation. The old class is referred to as the base class. इसको हम base class कहते हैं, and the new one class called is the derived class, right? This is the terminology we should keep. We should remember which is the derived class and which is the base class. Derived class inherits some or all the members. कुछ प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकती है. सपोज करो आपके पास बेस क्लास में 10 फंक्शंस हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें 10 जो ड्राइव क्लास है उसको हमें 10 फंक्शंस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है. हम कुछ की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं डिपेंड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, राइट? ड्राइव क्लास इनहेरिट सम और ऑल द मेंबर और प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास. ए क्लास कैन ऑल्सो इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन लेवल. ऐसा नहीं है कि केवल ड्राइव क्लास के अंदर ही आप केवल जो है बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं. इसको आप नेक्स्ट लेवल तक भी ले जा सकते हैं. सपोज करो आपके पास एक क्लास सी है. अब क्लास जो सपोज करो 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. क्लास बी ने ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करी, राइट, और क्लास सी ने बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करी. तो इनडायरेक्टली सी के पास ए की भी प्रॉपर्टी आ गई, राइट. तो इट कैन बी ना एनी लेवल, राइट. तो इसको हम समझते हैं डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस से. इसको हम आगे समझेंगे, बट अभी समझिए कि आप किसी भी लेवल तक आप किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं. सो इनहेरिटेंस सपोर्ट रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. ऑब्वियसली एक कोड जो आपने लिखा है बेस क्लास में, अगर आपने इनहेरिट कर लिया उसको ड्राइव क्लास के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि ड्राइव क्लास के अंदर आपको जो नए फीचर ऐड कर रहे हो, तो आपको जो पुरानी प्रॉपर्टी है, तो पुरानी जो कोड है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट add the new feature and you can call this method having the new features, right? You don't need to write the code which is already defined in the base class, right? So inheritance support the reusability of the code and is able to simulate the transitive nature of the real life objects. Now very important concept is type of inheritance. There are 5 types of inheritance support in C++. First, the single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance, and hybrid inheritance, right? All the 5 types of inheritance are very important to understand. And जैसे इसका जो नाम है, जैसे इसके नेमिंग है, उसी टाइप से इसकी प्रोग्रामिंग भी करी जाएगी, ठीक है. अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है तो उसकी जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो डिफरेंट होगी.
मल्टी लेवल है तो उसका प्रोग्रामिंग अप्रोच डिफरेंट होगा। ऐसे ही हायरार्किकल का, मल्टी लेवल का एंड हाइब्रिड का जो प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल है वो अलग अलग होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिंगल लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि यू जस्ट हैव अ टू क्लास लाइक ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। नाउ एक्स वाई जेड इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ए बी सी, राइट। एरो इज नॉट शोन हियर, बट xyz, abc is the base class and xyz is the derived class, and xyz is inheriting the property of the class abc because this is the single inheritance, single level inheritance. Only there is one derived class and there is one base class. This is called the single inheritance and it is very simple inheritance in the inheritance concept. So derived class with only one base class is called the single inheritance, right. So this is the base class and this is the derived class, right. And xyz means xyz is inheriting the property of the class a b c, right. Now multiple inheritance concept. Multiple inheritance concept means we have a abc class and we have a xyz class, means a derived class विथ मोर देन वन बेस क्लास। एक ड्राइव क्लास आपके पास एक सिंगल ड्राइव क्लास है लेकिन वो कई सारी बेस क्लास को वो एक्सेस कर रही है, ठीक है, मोर देन वन बेस क्लास। इससे पहले क्या था, केवल एक बेस क्लास थी, अब यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा बेस क्लास है जिसको एक ड्राइव क्लास ही एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। सो ए ड्राइव क्लास विथ मोर देन वन बेस क्लास is called multiple inheritance. Here you can see ABC is one base class, XYZ is another base class, and PQR is what? It is a derived class, and PQR is derived from the ABC also and XYZ, right? So this is the base class and this is the derived class, right? Now hierarchical. Hierarchical interface, hierarchical inheritance. When more than one class, it is the opposite of the previous one, like multiple inheritance. In multiple inheritance, there was two base class, but here hierarchical there is a single base class, but more than one subclass, right? When more than one class inherit from the same class, एक ही क्लास है जिसको एक से ज़्यादा आपकी जो सब क्लासेस हैं वो इनहेरिट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। इज द बेस क्लास एंड दीज आर द derived classes. Like derived classes are what? XYZ, PQR, MNO, right? These all three classes are inheriting the property of the base class A, B, C, right? Now multi-level inheritance. In the very first type of inheritance we see that we saw that कि उसमें केवल एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है, बट इन अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस we can have more than one derived classes, right? You can see here XYZ is inheriting the property of the ABC and PQR is inheriting the property of the XYZ, right? So obviously PQR, the property of ABC will automatically means present in the PQR, right? Because PQR is inheriting property of the XYZ and XYZ also has the property of ABC, right? Then the property of ABC also be there in the PQR also, right? This is called the multi-level inheritance, right? When a derived class is the base class of another class, when a derived class is the base class of another class. So when the derived class is what? XYZ is the derived class is the base class of another class. Base class किसकी है? PQR की, right? इसको हम क्या बोलते हैं? Multi-level inheritance, right? Hybrid inheritance is very important. हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जैसे नाम है वैसे ही इसका जो समझने का जो तरीका है वो भी इसी तरीके से है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, राइट।
तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिलकर कोई एक इनहेरिटेंस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि एक से ज़्यादा जो इनहेरिटेंस मिलके। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, ठीक है, एक से ज़्यादा क्लासेस जब आपके पास होती हैं, व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस एंड ऑल ऑफ इट्स बेस क्लास आर सब क्लास ऑफ द सेम क्लास, राइट, देन इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे आप ऊपर वाला इसका पोर्शन है वो आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये हायरार्किकल है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये इसे देखा आपने, ये क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से, ये क्या आपका हायरार्किकल में क्या होता है कि इस तरह से फिगर आपका होता है, लाइक वन मोर देन वन क्लास इनहेरिटेस द फ्रॉम द सेम क्लास, राइट। और इसके अपोजिट जब आपका ये होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि व्हेन ड्राइव क्लास विद मोर देन, इन दोनों फिगर को आप क्लब कर दें तो क्या हो जाता है आपका, वो ड्राइव क्लास आपका बन जाता है, सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है, राइट। ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एम एन ओ इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द ए बी सी, राइट, यानी कि एक्स वाई जेड के पास ए बी सी की प्रॉपर्टी है, एम एन ओ के पास भी ए बी सी की प्रॉपर्टी है, राइट। और अब पी क्यू आर क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड को इनहेरिट कर रहा है और एम एन ओ की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो ये दो इनहेरिटेंस मिलकर एक इनहेरिटेंस बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम आती है, एक डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है, राइट। वो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम क्या है, वी विल डिस्कस। सपोज करो कि यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स है जो कि ए बी सी क्लास के अंदर है, राइट, एक वेरिएबल एक्स है जो इस ए बी सी क्लास के अंदर है, राइट। अब इस ए बी सी क्लास को इनहेरिट कौन सी क्लास कर रही है, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड के पास भी वो वेरिएबल आ गया एक्स, राइट। अब एम एन ओ ये भी इनहेरिट कर रही है ए बी सी को, तो इसके पास भी एक वेरिएबल एक्स आ गया। अब पी क्यू आर है वो एक्स वाई जेड एम एन ओ दोनों को इनहेरिट कर रही है, राइट। तो एक कंपाइलर का एक कंफ्यूजन का पॉइंट है कि जो एक्स वेरिएबल पी क्यू आर क्लास में जा रहा है वो आइदर इट इज मतलब या तो ये एक्स वाई जेड से आ रहा है या एम एन ओ से जा रहा है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ एम्बिग्विटी, राइट। तो इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लास, राइट। इसको आगे हम पढ़ेंगे, वर्चुअल बेस क्लास, जिसमें जो ए बी सी क्लास है उसको हम वर्चुअल बना देते हैं ताकि फिर कॉपी किधर की तरफ से आए, वो जो आपका जो ए बी सी क्लास है उसी की कॉपी केवल वो एक्सेस करेगा, बाकी एक्स वाई जेड की भी इग्नोर करेगा और एम एन ओ क्लास से जो कॉपी आ रही है उसको भी इग्नोर करेगा, राइट। तो दिस एम्बिग्विटी विल बी इम्प्लीमेंटेड with the help of concept of the virtual base class. But now here we are going to understand the concept of hybrid inheritance, right? So this is the base class and so the derived class, right? Now how to define the derived classes? अब बात आती है derived class को define करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो a derived class can be defined by specifying its own relationship with the base class in addition to its own detail, ठीक है। सिंटैक्स के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं कि ड्राइव क्लास कैसे लिखते हैं। सपोज को क्लास, सबसे पहले क्लास आएगा, फिर ड्राइव क्लास का नाम आएगा, राइट, फिर कोलन आएगा, सिंगल कोलन, रिमेंबर ये एस आर ओ नहीं है, दिस इज अ सिंगल कोलन, राइट। फिर आपका विजिबिलिटी मोड आएगा, यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, व्हाट एवर द विजिबिलिटी मोड यू वांट टू यूज, राइट। उसके बाद बेस क्लास का नाम जो जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास, यहाँ पे आप जो भी मेंबर हैं वो ड्राइव क्लास के आप रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग द डिराइव्ड क्लास, राइट। नाउ द कोलन इंडिकेट दैट द डिराइव्ड क्लास नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास नेम, राइट। कोलन क्या बताता है कि जो ड्राइव क्लास नेम है वो indicate that the derived class name is derived from the base class। तो आपका बेस क्लास का क्या रेफरेंस होता है, तो वो ड्राइव क्लास समझ जाता है कि हमारी जो बेस क्लास है वो कौन सी है, राइट। और विजिबिलिटी मोड इज ऑप्शनल एंड इट इज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कैसा ट्रीट होगा, हमारा प्राइवेट ट्रीट किया जाएगा। ऑब्वियसली जैसे डेटा मेंबर के साथ होता है वैसे ही हमारा विजिबिलिटी मोड के साथ होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं है
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्राइवेट ही समझा जाएगा, राइट। So base class and derived class, it's a very simple diagram is here. Employee is the base class and derived by the manager, and manager is the derived class, right? So now talk about the direct and indirect base, direct and indirect base, right? So a base class is called direct if it is mentioned in the base list. क्या होता है कि जैसे एक क्लास ए है आपकी, राइट, और उसके बाद एक क्लास बी है, और बी इमीडिएट जो है आपकी ड्राइव क्लास है, और क्लास बी जो है वो कोलन लगा के ए को एक्सेस कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी वेयर क्लास ए इज द डायरेक्ट क्लास, राइट। एक ऐसी हुई हमारी डायरेक्ट क्लास। अब इनडायरेक्ट क्लास कैसी हुई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ए बी सी 3 क्लास हैं, बी ए को इनहेरिट कर रही है और सी बी को इनहेरिट कर रही है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सी में भी ए की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट बेस, यानी जो ए है वो सी के लिए इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर बी ए को इनहेरिट कर रही है तो बी ए के लिए क्या है, वो डायरेक्ट बेस, राइट। नाउ talk about the availability of data members in the derived class, right? This is very important कि जो availability है वो data member की कैसे होती है derived class के अंदर, ये समझना बहुत important है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिया हमने, एक बेस क्लास ले लिया। बेस क्लास के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट डेटा मेंबर x है, पब्लिक डेटा मेंबर y है और एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर z है, राइट। नाउ वी हैव सम डिराइव्ड क्लासेस। एक डिराइव्ड क्लास 1 है हमारी, कैसे लिखते हैं हम, क्लास, ये डिराइव्ड क्लास का नाम है, कोलन, विजिबिलिटी मोड, और ये हमारा बेस क्लास, राइट। इसके बाद ये हमारा विजिबिलिटी मोड डिराइव्ड क्लास 1 के लिए है। यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक सेक्शन में y को एक्सेस करने की कोशिश करी, राइट। और फिर हमारे पास प्रोटेक्टेड सेक्शन यहाँ पर है, इसमें हमने z को एक्सेस करने की कोशिश करी, राइट। तो क्या होगा, उसके बाद हमने क्या किया, हमारी जो ड्राइव क्लास है इसको हमने क्लोज कर दिया। नाउ वी हैव अनदर ड्राइव क्लास, ड्राइव 2। उसके अंदर हमने क्या किया, एक प्राइवेट सेक्शन है, उसके अंदर हमने y को एक्सेस करने की कोशिश करी और z को हमने यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम ड्राइव क्लास 1 की बात करें तो 1 में हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, पहली ड्राइव जो क्लास है उसमें हम y को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज y is public, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा मेंबर इन द ड्राइव क्लास। डेटा ड्राइव क्लास के अंदर डेटा मेंबर की अवेलेबिलिटी कहाँ कैसे कैसे होगी, ये हमारे जल्दी जानना जरूरी है, राइट। तो जो पब्लिक में जो आपका नंबर है ये हमारा ड्राइव क्लास के अंदर इजीली एक्सेस किया जा सकता है, राइट। और इसके अंदर जो आपका प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है वो भी आपका एक्सेस किया जा सकता है प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट डेटा मेंबर x एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि x का जो एक्सेस किया जा सकता है आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया सकता है, लेकिन केवल और केवल जो क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है वो उस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और कोई बाहर का एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप ड्राइव क्लास 2 में क्या हुआ है, एक प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है, यहाँ पर भी प्राइवेट में आपने क्या किया है, y को एक्सेस किया है और आपने इसको z को एक्सेस किया है, लेकिन यहाँ पर भी x को आप एक्सेस नहीं कर पाए, राइट, क्योंकि उसका लिमिटेशन है प्राइवेट डेटा मेंबर की, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, राइट। यहाँ पे पब्लिक को बताया गया है कि व्हेन क्लास इज डिराइव्ड इन अ पब्लिक मोड, यहाँ जो क्लास जो ड्राइव करी जा रही है वो आपकी किस मोड में करी जा रही है, ये विजिबिलिटी यहाँ पे जो लिखते हैं आप ये बताता है, ठीक है। व्हेन क्लास इज ड्राइव इन प्राइवेट मोड, ये आपके प्राइवेट मोड में आपका क्लास ड्राइव की जा रही है, राइट। नोट बट एक्स, यहाँ पे जो इसका ओवरऑल कंक्लूजन है इसको नीचे आप देख सकते हैं, बट एक्स फ्रॉम बेस क्लास इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन द ड्राइव क्लास, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इनहेरिटेंस, राइट। जो आपका जो प्राइवेट डेटा मेंबर है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बिकॉज यू नो इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, राइट। This is also the concept of data hiding. They cannot only access through the class functions. क्लास के अंदर फंक्शन अगर होता तो ये एक्सेस किया जा सकता था, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़े हैं उसके बारे में, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे फिगर के थ्रू समझ सकते हैं आप
कि एक क्लास हमारे पास एनिमल है और उसके अंदर एक पब्लिक सेक्शन में एक हमारे पास फंक्शन है दैट इज वॉइड ईट, राइट, एंड वी आर डिक्लेयरिंग द बॉडी ऑफ दिस ईट फंक्शन, सी आउट ईटिंग, राइट, whatever the message you want to put here, and the class is closed, right, animal class is closed. Now we have a derived class that is dog and public animal, ठीक है, which is inheriting the property of animal, that is base class property, and public section में जो आपकी derived class है इसका अपना एक अपना मेथड है दैट इज बार्क की भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं, सॉरी बार्क की भी जो है मेथड है उसके हम डेफिनेशन को यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पे हमने उसकी जो क्लास है उसको क्लोज कर दिया। नाउ मेन मेथड है हमारा, मेन मेथड में क्या किया हमने, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज D1, कुछ भी बना सकते हैं यार, D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे यार, ईट मेथड को कॉल करेंगे, ऑब्वियसली कॉल कर सकते हैं। ईट मेथड डिफाइन किस में है हमारा, ईट मेथड डिफाइन है एनिमल क्लास के अंदर, राइट। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई D1 हमारा डॉग का ऑब्जेक्ट है और इस डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एनिमल के मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनहेरिटेंस, क्योंकि जो एनिमल की प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके किसके अंदर आ गई, ड्राइव क्लास के अंदर आ गई। तो अगर आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली एक्सेस, नो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो D1 डॉट ईट, ओके, नो एरर। D1 डॉट बार्क तो एक्सेसिबल हो ही जाएगा क्योंकि बार्क ऑलरेडी आपके ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। So your output will be, first one will be eating and the second one will be barking, will be shown, right. This is the single level inheritance. Now talk about the multiple inheritance. As the figure shows, when more than one base class is inheriting in the derived class, then it is called the multiple inheritance. यहाँ पर समझने के लिए इस फिगर के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ABC क्लास होगी, राइट, और उस ABC एक दूसरी क्लास होगी हमारी XYZ या कोई भी क्लास होगी, और एक तीसरी क्लास होगी जहाँ पर ये दोनों ही क्लास जो है वो इनहेरिट करी जा रही होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल बेस क्लास आपकी है, ठीक है। तो फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी हैव अ क्लास A and public section we have a constructor, no doubt about this. The class name and the function name is same, no doubt, it is constructor, right. तो constructor मैंने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कराया that is constructor called, right, and close the class, right. Now we have a class B, in the class B we have a public section, we have a B's constructor, B class का constructor है हमारा ये, इसमें हम मैसेज क्या प्रिंट करा रहे हैं, B's constructor called class B is closed here, right. तो दो क्लास हो गई आपकी, एक क्लास A और क्लास B। नाउ अब तीसरी क्लास में इन दोनों क्लास को क्या करना है, इनहेरिट करना है, तभी तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हमने क्या किया, एक क्लास C लिया दैट इज कोलन और पब्लिक B कोलन कॉमा पब्लिक A, यानी कि क्लास C के अंदर हम क्लास B को इनहेरिट कर रहे हैं और क्लास A को इनहेरिट कर रहे हैं। नोट द ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर नोट करने के हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने B इनहेरिट किया है, उसके बाद A इनहेरिट किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, B पे जाएगा, उसके बाद फिर A पर जाएगा, राइट। तो अब चूंकि ये क्लास C है तो C क्लास का भी कॉन्स्ट्रक्टर हमने यहाँ पर डिफाइन किया, क्या, C कॉन्स्ट्रक्टर कॉल, राइट। उसके बाद हमने C क्लास को भी क्लोज कर दिया। नाउ वी हैव अ मेन क्लास, मेन क्लास के अंदर क्या किया हमने, C का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, C का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया हमने, C। ऑब्जेक्ट बनाते क्या होगा, आपका कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, राइट। कॉन्स्ट्रक्टर जैसे कॉल होगा तो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले किस पे जाएगा, C पे जाएगा, राइट। अब ये चेक कंपाइलर आपका चेक करेगा कि C किसको इनहेरिट कर रही है, सबसे पहले C पहले B को इनहेरिट कर रही है, सबसे पहले किस पे जाएगा, ये B वाले कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करेगा, राइट। B का कॉन्स्ट्रक्टर क्या है, B कॉन्स्ट्रक्टर कॉल, ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, A पर जाएगा, A कॉन्स्ट्रक्टर क्या है, ये लिखा हुआ है एस कॉन्स्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद मैसेज क्या जाएगा, एस कॉन्स्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद वापस रिटर्न कहाँ पे होगा, ये C वाले पर रिटर्न होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये कॉल हुआ था, ये C का तो कॉल किया था आपने, तो यहाँ पे कॉल होने से पहले चेक करेगा कि इससे पहले कॉन्स्ट्रक्टर कौन कौन से कॉल किए जा चुके, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टर का ये रूल होता है कि जिस ऑर्डर में वो डिफाइन किए जाते हैं उसी ऑर्डर में वो कॉल होते हैं, राइट। तो C से पहले कौन कौन से डिफाइन थे, B और A, तो सबसे पहले B पर जाएगा, उसके बाद A पर जाएगा, फिर वापस कंट्रोल आएगा C के ऊपर। तो योर आउटपुट विल बी B's constructor called, A's constructor called and C's constructor called will be shown,
right? So this is called multiple inheritance. Now hierarchical inheritance. hierarchical inheritance जैसे कि आपके पास एक सिंगल बेस क्लास होगी और उसी क्लास को 3 अलग अलग जो क्लासें हैं वो उसको इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्लास एनिमल है, इसमें एक फंक्शन हमने ले लिया, राइट, सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अब इसी एनिमल क्लास को डॉग क्लास भी एक्सटेंड करेगी, इनहेरिट करेगी, कैट क्लास भी इनहेरिट करेगी और कई सारी क्लास इनहेरिट कर सकती हैं। यहाँ पर हमने 2 क्लास इनहेरिट करी है, बस कितनी भी कर सकती हैं, राइट। तो अब हमने एक डॉग क्लास है जो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है और एक कैट क्लास है जो एनिमल क्लास को ही इनहेरिट कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। नाउ अब हमारे पास मेन क्लास है, ये जो एग्जाम्पल है शायद ये कर दिया है इन्होंने मल्टीपल का, लेकिन इसमें आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि चूँकि एक क्लास अगर आप डॉग भी उसी को इनहेरिट कर रही है, उसके बाद कैट भी उसको इनहेरिट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ टॉक अबाउट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब यस, मल्टी लेवल का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरी एक XYZ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ABC and PQR inheriting the property of the XYZ, right? This is called the multi-level inheritance. Now hybrid inheritance is the combination of more than one type of inheritance, right? एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास है आपकी, राइट, और मार्क्स जो क्लास है वो स्टूडेंट क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, राइट। और ये कैसा इनहेरिटेंस हुआ आपका, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ, राइट। अब मार्क्स कैसी आपकी ड्राइव क्लास हुई, अब मार्क्स और एक आपकी बेस क्लास है स्पोर्ट, अब स्पोर्ट और मार्क्स को कौन इनहेरिट कर रहा है, रिजल्ट क्लास एक है, ये कैसा हुआ आपका, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। So this is called a hybrid inheritance because it is the combination of more than one type of inheritance. दूसरा यहाँ पर भी है हायरार्किकल, ऊपर क्या है कि चूंकि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो चाहे वो आपका इस टाइप का हो कि सिंगल लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो या आपका हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, तो भी यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन का आपके पास इनहेरिटेंस है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। Now, hybrid inheritance में आप देखिए, hybrid inheritance is the method where one or more types of inheritance are combined together and used, right? So class A is the most parent class, B is the child class, and class C is also a child class, and class D is again a child class, which is inheriting the property of class B and class C, and class B and class C inheriting the property of class A, right? So this is the mixed type of inheritance, which is called the hybrid inheritance. Here through the example you can better understand. We have a class A and it's a pseudocode written here. Class B inheriting the class A, right? Class C inheriting the class A, right? And class D inheriting B and C, right? So this is called the hybrid type of inheritance. We can understand with the example with output also. Suppose we have a class student is the base class, and we have a protected data member like roll number, and we have a public function like get roll number, right? And this is the function, enter the roll number of the student. We are receiving the roll number values from the keyboard, and we have another function put roll number, and we are showing the roll number also. So we have a two-member function, get roll number and put roll number, and we have some protected data member like R number, yani ki roll number, right? And class name is the student, right? And here the class is over. So now we have a derived class test, which is inheriting the property of the student class, that is immediate derived class. Now protected data member is also here, int part 1 and part 2, okay? उसके बाद कुछ आपके पास पब्लिक फंक्शंस हैं, गेट मार्क्स में आपने कुछ फंक्शन दिया है, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स आप एंटर कर रहे हैं,
उसके बाद सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन SA2, और उसके मार्क्स भी आप एंटर करवा रहे हैं CN के फंक्शन। तो गेट मार्क्स में आप क्या कर रहे हैं कि दो के जो मार्क्स हैं SA1 और SA2 उनके मार्क्स आप रिसीव कर रहे हैं, राइट। नाउ पुट मार्क्स क्या कर रहा है, जितने मार्क्स आपने रिसीव किए हुए हैं उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन पार्ट 1, जो आप पार्ट 1 में जो वैल्यू आई हुई है उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, और पार्ट 2 में जो वैल्यू आई है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक व्हाट यू हैव टू पुट इन द डिराइव्ड क्लासेस। फ्रॉम द बेस क्लास को आपने इनहेरिट किया और डिराइव्ड क्लास के अंदर आपने इस जो मेथड है इनको रखा, राइट। तो अब हम चलते हैं इसका जो तीसरी क्लास है, दैट इज क्लास स्पोर्ट। स्पोर्ट में भी क्या है कि आपने एक पास प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, यानी कि एक फिगर जो आप याद रखेंगे उसके बिहाफ पे ही आपको सारी क्लासेस बनानी है। सबसे पहले आप क्लास बनाएंगे, उसके बाद उसको कॉल करने के तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्लास लाइक स्पोर्ट्स, we have protected data member score, and we have a function get sport mark and put sports mark, and the here class is over, right. Now result, there is the result a class which is accessing the test class and the sport class, right. Now there is the variable like total. We have also a method display here which is displaying the addition of part 1 part 2 plus score, and put roll number, put marks and put sports marks, right. And it is here printing the total score of the student, right. So this is the drive class from the test and sport class, right. We will follow the concept of according to the diagram we have seen in the earlier slide, right. According to that we have to follow we have to maintain the classes and derive the classes accordingly, because we have to maintain the characteristics of the hybrid inheritance, right. And finally we have to create the main class, and the main class we have to access all the data members in the previous classes, right. Now according to the main class, in the main class we are creating the object of the result class, and using the result class we are accessing the get roll number, obviously it will be the called, and using the same object we will call the get marks method, and rest of the method we can call with the help of the result object, right. So this is the example of the hybrid interface in interface concept, right. So this is the output. I hope that you can see here. So the enter total mark according to the previous slide, you will get your desired output, right. Okay, thank you so much for the today's class.